Yes. As you know that we are discussing this topic, that is the Food Safety and Standards Act. From the 4 or 5 classes I have already taken on this topic. Today I will discuss section 18 of this particular act, which deals about the principles which to be followed by the central government, state governments, food safety and standard authority of India and other agencies which are liable for the enforcement of this particular act. As you know that regarding in this particular act, we were discussing several provisions regarding the definition portions about the FSI like this. And regarding the cases, there are 3 cases which have been mentioned in your syllabus, and till now I have not discussed any particular sections. But from the next class, I will start my case discussion, that is the M. Muhammad versus Union of India. And in this way, today will be last class regarding the bare provisions of this particular act. Regarding the section 18, I have to discuss. Regarding other provisions, I have already discussed. What is the section 18? If you see the section 18, as you know that the bare provision is something, before discussing the bare provisions, we can take the help of two leading judgment. These leading judgment are the Association of Traders and Others versus Union of India, decided by the Bombay High Court. Bombay High Court decided this case on the basis of PIL filed by the some associations of the traders. And in this case, Bombay High Court observed some important points. Although this case is not in your syllabus, but for your knowledge as well as understanding, this case is a very important case. What was, and the second point is that, and second case, that is the Messrs Nestle India Limited versus Food Safety and Standard Authority of India. This case has been mentioned in your syllabus, but this is the landmark judgment, and on this case, in this case, several points were discussed, including section 18 of this particular act. That's why before going to discuss section 18, I want to discuss something about this act. As you know that here there is a one smart art. It clearly says that what is the section 18? 18 is that principles to be followed. It means section 18 deals about certain principles which must be followed by the enforcement authorities. That is, we can say that this is like a directive principles of the state policy. In this section, total section is there. In total classes are 3 classes. How many classes? 3 classes. First class talks about the implementation. It means first class talks about those principles which must be followed during the implementation of this particular act. क्लास 1 कहता है कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, कुछ ऐसे नॉर्म हैं जिनको कि जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब इस एक्ट के प्रोविजन को लागू कर रहे हैं, उसको लागू करते समय आपको क्या ध्यान में रखना होगा. तो क्लास 1 में प्रिंसिपल इनोमरेट किए गए हैं. इट मींस क्लास 1 रिलेटेड टू द principles which must be followed during the implementation of this particular act. Class 2 talks about those principles which must be considered, which must be followed during framing of regulations and specifying standards. क्लास 2 कह रहा है कि वे प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है जब आप कोई कानून फ्रेम करते हो, कोई स्टैंडर्ड फिक्स करते हो कि ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, उस समय उस कानून को फ्रेम करते समय, उस रेगुलेशन को फ्रेम करते समय, उस स्टैंडर्ड को फिक्स करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ेगा. दिस टॉक्स अबाउट द क्लास 2. इट मीन्स what is the difference between class 1 and class 2? Difference between both is that farmer talks about those principles which must be followed during the implementation of laws and rule regulations, and while later discuss those principles which must be followed
during the framing of regulations and specified standards. Regarding the third class, here the class third, I am something I have missed here. Point must be regarding third class. एक मिनट, किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा ना भाई? लेट मी नो। भाई तुम काहे परेशान कर देते हो यार? इसीलिए तुमको शुरू का टाइम दे रखता हूँ ज्वाइन करो, फिर बाद में लिख दोगे कि सर दुश्मनी है क्या कि आप हमें ज्वाइन नहीं करने दे रहे हो। कर लो। चलो, एक्चुअली क्या होता है कि जब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इस पे, तो उसमें आपको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं आपको शुरू का 5 मिनट दे रखा हूँ कि आप उस 5 मिनट में क्लास अटेंड कर लिया करें। इसीलिए अगर क्लास 3:50 का है तो मैं 3:55 से स्टार्ट करता हूँ, अगर 5:40 है तो 5:45 से, ताकि आपको इनकन्वीनियंस ना हो। अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो गुड फेथ में सोचा करिए कि हाँ, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही होगी इसलिए आप ज्वाइन ना कर पा रहे हो, ठीक ना? और कोई इसका इरादा नहीं होता है। So this is the come to the class 3. Class 3 here is that it talks about that non-application of act in certain cases. It talks about certain cases which must not be governed by this particular act. For the example, there are certain cases I will discuss. For the example, fisheries. For the example, फॉर एग्जाम्पल लाइव स्टॉक्स, मतलब इस तरह के जो मैटर होते हैं इस एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि इसके जैसे लाइव स्टॉक का मतलब हुआ, या बहुत सारी चीज जैसे फिश का प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हुआ, एक का हुआ, तो उस पर ये सब मैटर गवर्न नहीं करेगा। इट मीन्स क्लास 3 deals about certain matters which are not governed by this particular act. In this way, there are three classes: class 1, class 2, and class 3. Now, before going to these three classes thoroughly, I want to discuss with the help of some cases. As you know that, as if you see the previous year question paper, question is of course that please discuss the principles which must be followed. एक क्वेश्चन ये है। अब ओके, तो क्या सिर्फ बेरेट लिख दो that is sufficient? Mere writing of the beret is not sufficient. You have to write some cases. How to write the cases? You can take help of the this particular act, this particular case. Name of the case is the Association of Traders. ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन है, वो केस फाइल करता है। एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया decided on the 16th September 2016 by which court? By the Bombay High Court. By the Bombay High Court. In this case, what was laid down by the Bombay High Court? That is the very important line. It was said that a perusal of section 18. What is the perusal? Everyone knows about the perusal. Perusal means a deep study of something which helps in understanding anything. जैसे हम कहते हैं ना कि हम इसका स्टडी कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पेरिजुअल ऑफ सेक्शन 18 मतलब बहुत डीप में जा करके किसी चीज को आप समझते हैं। जैसे होता है ना कि समुद्र में डूब करके मोती निकालना, तो यही कह रहा है कि सेक्शन 18 का थोरोली डिस्कस करने के बाद, थोरोली स्टडी करने के बाद क्या उसमें से निकल करके आता है, क्या जिस्ट निकल करके आता है, इसके लिए एक वर्ड यूज कर रहा है कि पेरिजुअल ऑफ सेक्शन 18 रिवील्स दैट, क्या रिवील करता है? reveals that the foundation is preservation of human life. It means what is the basic idea of section 18? What principles, why these principles have been mentioned under section 18? Why these principles must be followed in the implementation or framing the laws? Why? Reason is that foundation is the preservation of human life. इस सारे के सारे कहानी खिस्सा किस लिए की जा रहा है? ताकि ह्यूमन लाइफ को हम सेव कर सकें, बचा सकें। ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ व्हाइल प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट। कह रहा है कि वी कैन प्रोटेक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ as well as
at the same time protecting the consumer interest, at the same time by having fair practices in all kinds of foods and trade, and maintenance of food safety and standard and practices. It can We can say that even this say that there are certain principles, there are certain object with to fulfill that object we are talking about the section 18. What are the objects? Class 1. First point, foundation is preservation of human life and health. Second, protection of the consumer interest. Third, fair practices in all kinds of food and trade. Fourth, maintenance of food standard practices like this. In this case, what was observed regarding the class 1 and class 2? It was said that these principles are laid down in subsection 1 and 2. These provisions plays a vital role in the implementation of the provisions of the Act, rule and regulations. You can read yourself regarding the importance, and regarding there is no need to read discuss again, because in previous classes I have already discussed. You for this purpose you have to read only first point and second point. Second point, the provision is also signifies and reflect the legislative intent and object which sought to be achieved, by the in the hand of central state other agencies like this. कुल मिला जुला करके सेक्शन 18 का इसमें वैल्यू बताया गया है. इस केस में यही बताया गया है कि इस प्रिंसिपल को लेट डाउन किया गया है सर्टेन ऑब्जेक्ट के लिए, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है कि ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, फेयर प्रैक्टिस को मेंटेन करना. और सेक्शन 18 जो है एक्चुअल में इस लेजिस्लेटिव इंटेंट, लेजिस्लेशन क्या चाहता है, लेजिस्लेशन क्यों इस एक्ट को इनेक्ट किया है, वो पर्पस भी एक कंटेंट कर रहा है. तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शन 18. You can write here what is the importance of section 18. You can take these two points regarding the importance of practice. Come to the measures Nestle India Limited versus Food Safety and Standard Authority of India. What was observed in this case regarding the section 18 class 1 and 18 class 2? It was observed that, simple point was observed that section 18 talks about those guidelines which are to be followed while implementing the provisions of this act. कह रहा है कि वो गाइडलाइन है जो इम्प्लीमेंट करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा. क्लास 2 क्या कहता है? क्लास 2 कहता है कि those guidelines which are to be kept in mind by the food authority while framing the regulation and standard of this act. और इसको क्या रखना है? क्लास 2 क्या कहता है? रूल रेगुलेशन जब फ्रेम होगा या स्टैंडर्ड स्पेसिफाई होगा तो ध्यान में रखना होगा. दिस सेक्शन कांट बी सेड टू बी सोर्स ऑफ पावर. ये सेक्शन जो है किसी को पावर कन्फर नहीं दे रहा है, ये कर क्या रहा है? इट ओनली लेज डाउन द गाइडलाइंस. बस हमारे कहने का मतलब है कि सेक्शन 18 पूछ दे तो इन प्रकार तुम्हें 2 केस लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब उस क्वेश्चन के साथ 2 केस लिख दोगे तो अपने आप मार्क्स मिल जाएगा. अगर सिर्फ तुम कहोगे कि डायरेक्टली इस सेक्शन से रिलेटेड है ही नहीं, हम लिखेंगे ही नहीं, तो तुम्हारे राइटिंग सुंदर नहीं आएगी, तुम्हें मार्क्स भी कम मिलेगा. तो इसको लिख देना. कम टू द सेक्शन 18. व्हाट इज द सेक्शन 18 क्लास 1 एंड क्लास 2? कम टू द सेक्शन 18 क्लास 1. हेलो सर. हाँ एक्सक्यूज मी सर काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं काफी टाइम से. तो वही बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम उनका वही है. जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं ना, जब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो नहीं कर पाते हैं. देखो अभी सा हुआ है. थैंक यू सर. Come to the point here that section 18. This is the point. Section 18 talks about general principles to be followed in the administration of this act. By whom? By central government, by state government, by food authority. Food authority means FSI, or any other agency as the case may be. Well, most important point is that while implementing the provisions of this particular act, this is the important word. This word will make the difference between 18 class 1 and 18 class 2. While implementing the provisions of this act, shall be guided by the following principles, namely, what will be principles?
A, B, C, D. Now I will discuss. First thing is that at the time of implementing this particular act, first principle is that to endeavor to achieve appropriate level of which whatever I have discussed in the case of association of traders and others versus यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें था ना ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, including fair practices in all kinds of food trades with reference to food safety and standard and practices. My point is that whatever was observed, this is the case. Association of Bombay traders, it was also used preservation of human life and health, protecting consumer interest by fair practices, all kinds of food care, maintenance of food. तो हमारे कहने का मतलब है कि एक केस के साथ साथ तुम दोनों चीज कर सकते हो, केस का नाम भी लिख सकते हो और यहाँ पे तुम इस वर्ड को भी क्लास ए को भी लिख सकते हो। तो क्लास ए में क्या है, पहला क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है कि आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आप ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ साथ में फेयर प्रैक्टिसेस इन ऑल काइंड ऑफ फूड ट्रेड में जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हो वो फेयर होना चाहिए, वो अनफेयर नहीं होना चाहिए। फेयर और अनफेयर क्या होगा, कई बार अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सारे फूड को एक साथ मार्केट से खरीद लेंगे, मार्केट से खरीद लेंगे, खरीदने के बाद सारा क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। जब एक साथ स्टोर हो जाएगा, उनके पास 10-15 लोगों के पास स्टोर हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि मार्केट में अपने हिसाब से सामान लाएंगे, पूरे मार्केट को अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे। अब जैसे सामान मार्केट का पॉलिसी है कि अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑफकोर्स प्राइस कम होगा। तो अब इस तरह से क्या करेगा, वो पूरे मार्केट को, कुछ उद्योगपति इसको कंट्रोल कर लेगा। जो एग्रीकल्चर के रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, 3 ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, हर एक आदमी का अपना अपना पक्ष हो सकता है, हम लोग विरोध और सपोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसका एक सबसे माइनस पॉइंट आ रहा है, सबसे माइनस पॉइंट उसका यही आ रहा है, एमएसपी नहीं है उसमें। एमएसपी न होने का आपको सबको मालूम होगा, खैर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो तुरंत तुम लोग ऑब्जेक्शन करोगे। एमएसपी न होना किसानों के लिए बहुत बड़ा वो होगा, पूरे मार्केट को कोई और कंट्रोल कर लेगा। एमएसपी होने से होता है कि एटलीस्ट उनको उतना मिलेगा ही मिलेगा, बाकी चीजें तो है। तो ये कह रहा है कि फेयर प्रैक्टिसेस को आपको देखना होगा कि जो फूड ट्रेड में इन्वॉल्व हैं वो फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, 3 चीज है। पहला यही है कि ह्यूमन लाइफ को ध्यान में रखना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, और जो मार्केट में ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रहे हैं वो फेयर है या अनफेयर है, उन पर ध्यान रखना है। तो पहला प्रिंसिपल तुम्हें लिखना होगा, endeavor to achieve an appropriate level of protection of human life. This. Second point is that carry out risk management. Carry out risk management. It says that at the time of implementation of this act, what must be considered. It says that carry out risk management, which shall include taking into account the result of risk assessment and factors which in the opinion are relevant. कह रहा है कि इम्प्लीमेंट करते समय आपको कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट का कहने का मतलब यह है, आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर इस तरह का रिस्क आता है या कोई मैटर इस तरह का आता है या अनसर्टेनिटी कहीं आने की संभावना है, तो उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। मतलब आपको कम से कम स्टॉक लेकर के चलना होगा। जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इस साल उत्पादन हो गया तो पूरा तुरंत जो भी है जैसे भी है उन्हें पौने दाम में निकाल दिए, बेच दिए, खत्म कर दिए, कोई स्टॉक में है ही नहीं, अगले साल भूखा पड़ गया या ड्रॉट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपके पास मैनेजमेंट के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ऐसा फॉलो नहीं होगा। कह रहा है कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना होगा। फिर कह रहा है कि वेयर इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, कह रहा है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसको आपको रेगुलेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इसको पढ़ लेना, इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। या प्रोपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहा है कि इसका सीधा सीधा संबंध क्लास सी से है। कह रहा है कि आप क्लास सी के अंतर्गत कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में
कुछ रेस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। और लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगाते समय डी कहता है कि उतना ही रेस्ट्रिक्शन लगाना जितना की जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन मत लगाना। ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। कह रहा है कि मेजर्स एडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास सी shall be proportionate and not more restrictive or trade than is required। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं सूखा पड़ने वाला है, तो आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज होने वाला है, तो आप ऐसा मत लगा देना कि नहीं कोई भी आदमी कुछ भी नहीं बेच सकता। हमारे स्टॉक में मान लीजिए कि हजारों टन गेहूं पड़ा हुआ है, आप पूरा फ्रीज कर दिए कि नहीं आप इसमें से 1 केजी भी नहीं बेच सकते हैं। अगर ये तो अनफेयर हो गया ना, प्रोपोर्शनेट हुआ ही नहीं। क्योंकि हमारे 1000 टन गेहूं को प्रोडक्ट करने के लिए हमें कुछ खर्चे भी तो चाहिए, मेंटेनेंस करने के लिए भी तो चाहिए। अगर उसका हम थोड़ा सा भी सेल नहीं करेंगे तो हम 100 कर्मचारी रखे हुए हैं, स्टॉक में बहुत सारी चीजें केयर करना, तो हम केयर कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि आप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन हमेशा ध्यान में रखना होगा कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। रिव्यू ऑफ मेजर्स, जो आप मेजर्स यूज करते हो इम्प्लीमेंट के दौरान, जो भी मेथड आप अप्लाई करते हो उसका हमेशा रिव्यू करते रहना है। रिव्यू कैसे होना कि इसमें कर रहा है कि द मेजर्स एडॉप्टेड शैल बी रिव्यूड विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि समय समय पर उसका रिव्यू होते रहना चाहिए कि हम जो मेजर अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी टू इन्फॉर्म पब्लिक इन केस ऑफ फूड रिस्क फॉर हेल्थ। कह रहा है कि अगर कोई इस तरह का अगर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करने की बात आ रही है। जैसे कि कोई फूड है, उसमें हमें मिला कि नहीं ये स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें उसको ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत है। और वो ब्लैकलिस्ट करने के बाद प्रॉपर वे में पब्लिक को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। ठीक ना, पॉइंट को भी स्टैंडर्ड फूड क्या कहने का मतलब है, जैसे हमने स्टॉक में से सैंपल लिया, 10 सैंपल लिया, 10 सैंपल फेल हो गए, तो हम क्या माने कि होल स्टॉक का जो माल है या गुड्स है या फूड है वो सब स्टैंडर्ड है, या जितना हम आएगा कि होल स्टॉक सब स्टैंडर्ड में है। जैसे हम लोग की देहात में कहावत है कि चावल पका है कि नहीं पका है, इसको चेक करने के लिए 2-4 चावल निकाल के हाथ से टेस्ट कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि पूरा चावल पका है कि नहीं पका है। तो ये कह रहा है कि अगर आप कुछ सैंपलिंग ले करके टेस्ट करते हो और कुछ सैंपलिंग या कुछ मैटर जो है इस टेस्ट में फेल हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि स्टॉक में जितनी भी चीजें हैं सारे सब स्टैंडर्ड में है, किसी की क्वालिटी नहीं है। मतलब ये है कि प्रिजम्पशन जो होगा होल गुड्स के लिए माना जाएगा रादर देन ओनली फ्यू पार्ट्स ऑफ द गुड्स। तो यही कह रहा है कि इस तरह का प्रिजम्पशन होगा अनलेस देयर इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ देखो कह रहा है कि वेयर एनी फूड विच फेल्स टू कंप्लाई विद द फूड सेफ्टी। कह रहा है कि अगर कोई फूड है जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करने में फेल हो गया, और वह क्या है, इज ए पार्ट ऑफ बैच है, तो प्रिजम्पशन क्या होगा, पार्ट ऑफ बैच लॉट और कंसाइनमेंट ऑफ द फूड ऑफ सेम क्लास और डिस्क्रिप्शन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड until the contrary is proved। अब यहां से लेंगे हम, it shall be presumed that all of the food in that batch lot or consignment fails to comply with those requirements। कह रहा है कि अगर किसी फूड का मतलब किसी लॉट का या कंसाइनमेंट का या किसी बैच का कोई भी पार्ट का फूड है जो है सैंपलिंग में फेल हो जाता है, तो हम पूरे बैच के या पूरे लॉट के या पूरे कंसाइनमेंट के फेल को मानेंगे कि वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह का है। ये जी तक के पॉइंट है, तुम लोग अपना इसको और एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे तुमने पहला पॉइंट देख ही ली, कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट वेयर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, प्रोपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शन, रिव्यू ऑफ मेजर्स, ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड। ये चीजों को देख लेना। अब क्लास 2 क्या कहता है, क्लास 2 कहता है कि कोई रूल रेगुलेशन बनाना है तो क्या किन बातों का ध्यान में रखना होगा। क्लास 2 से दैट व्हाट प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड while framing regulations are specifying under standard under this particular act। कह रहा है कि क्या ध्यान में रखना होगा। पहला ध्यान में रखना होगा आपको
prevalent practices and conditions in the country. Prevalent practices and conditions in the country. कह रहा है कि जो सोसाइटी में प्रैक्टिसेस होते हैं, क्योंकि हर चीज रूल रेगुलेशन से फॉलो नहीं होते हैं, कई चीजें होते हैं वो प्रैक्टिस में इस तरह से फॉलो होती है कि एज ए रूल रेगुलेशन की तरह ही वो काम करता है। तो कह रहा है कि अगर कोई प्रैक्टिस है या कोई कंडीशन है इस कंट्री में तो उसको ध्यान में रखना होगा। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। वेट। Yes, it said that prevalent practices and conditions in the country। कई बार होती है कि कोई चीजें प्रैक्टिसेस में जो काउंट मतलब चल रही हैं, तो कानून बनाते समय ध्यान में रखना होगा कि उस प्रैक्टिस का या उस कंडीशंस के कंट्रेरी में रूल रेगुलेशन ना बने, या अगर बनाना है तो ध्यान में रख करके बनाना है, उन चीजों को माइंड में रख कर भी चलना है। जैसे हम क्या करते हैं, अब जैसे हम जैसे हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की को हम मैक्सिमम प्रोविजन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ब्रिटेन से बारो किए हुए हैं। तो कई चीजें हमारे यहाँ या उनके यहाँ तो मैक्सिमम चीजें कन्वेंशन पर ही चलती हैं। तो कई चीजें जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट होता है और वो ब्रिटेन में कन्वेंशन में है, मतलब फॉलो हो रहा है, प्रैक्टिस में हो रहा है, तो हम वहां से उसको बारो कर लेते हैं, अपने यहाँ उसको रन करा लेते हैं। तो ये कह रहा है कि इसी तरह की कोई प्रैक्टिसेस है, कंडीशंस इन द कंट्री है, तो उसको आप ध्यान में रखकर ही कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे। किसके रिगार्डिंग? इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट कंडीशंस, व्हाटएवर माइट बी दैट। Point was that in a simple language that whatever practices is going on in this country regarding agricultural practices, handling, storage and transport conditions must be considered at a time of making the regulations or specifying the standard under this particular। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये कंट्री में जो कंडीशन है या प्रैक्टिस है उसकी बात हो रही है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में जो इंटरनेशनल लेवल के जो प्रैक्टिसेस हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, तो कह रहा है कि क्लास 1 इस सब क्लास 1 किसकी बात करता है? कंट्री की। क्लास 2 किसकी बात करता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। तो मतलब ये हुआ कि क्लास 1 सीधा सीधा कहता है कि व्हाट एवर प्रैक्टिसेस आर कंडीशंस आर गोइंग ऑन either in this country or in the other countries regarding the storage, transport, handling like this must be considered at the time of framing the rule regulations specifying the condition like this। सिंपल सी बात है कि चाहे भारत में हो या अन्य देशों के साथ हो जिसके साथ हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस तरह के मामले में कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना हो तो प्रैक्टिसेस जो कंटिन्यू चल रही हैं उनको भी ध्यान में रख करके हम काम किया जाता है। जैसे प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस में ये फॉलो होता है, जैसे इंडियन प्रैक्टिस में कंस्ट्रक्शन का काम होता है। अब ठेकेदार क्या करता है, वहां से वो ले लेता है, ठेका ले लेता है, कि नाम उसी का रहता है, लेकिन ठेकेदार भी क्या करता है, सब ठेकेदार अपॉइंट कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई विधायक या कोई बड़ा नेता, जैसे रिलायंस कंपनी ने किसी कंस्ट्रक्शन का ठेका ले लिया या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो रिलायंस कंपनी क्या करती है, अब उसमें कई और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को मिला करके अपना काम वो परफॉर्म करती है। इस तरह के कह रहा है कि फूड में भी अगर कोई इस तरह का चल रहा हो तो वहां के प्रैक्टिसेस, रूल रेगुलेशन को ध्यान में रख करके काम करना होगा। क्लास ए बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लास बी आ जाओ। कह रहा है कि डिटरमाइन फूड स्टैंडर्ड, कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? डिटरमाइन फूड स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस। कह रहा है कि जब रूल रेगुलेशन बनाओगे तो इस बात को भी डिटरमाइन करोगे, जब फूड स्टैंडर्ड जब बनाओगे किसी चीज के लिए उसमें देखना पड़ेगा उसमें रिस्क एनालिसिस कितना है। जैसे कई चीजों में क्या होता है, फूड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रिस्क जैसे मान लीजिए कि आपने होटल मैनेजमेंट का है, तो होटल मैनेजमेंट में अगर खाना इतना बन गया तो बर्बाद होगा ही होगा। अब खाएं चाहे ना खाएं, आप उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते।
तो अगर कोई होटल बिजनेस का मतलब कोई होटल का काम कर रहा है, फूडिंग का काम कर रहा है, जो इस तरह रेस्टोरेंट का काम कर रहा है, उसका मैटर, या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, या जैसे मान लीजिए फ्रूट्स का मैटर है, तो फ्रूट्स में 2 4 10 दिन इधर उधर हो सकता है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन फूड के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब फ्रूट के मामले में अलग स्टैंडर्ड होना चाहिए और फूड के मामले में अलग स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जब स्टैंडर्ड फिक्स होगा, जब कोई स्टैंडर्ड आप बनाएंगे, तो उसमें रिस्क एनालिसिस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस बिजनेस को करने में या उस मैटर में कितना रिस्क है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन फूड स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस except where it is opinion that such analysis is not appropriate to circumstances or nature of the cases। कह रहा है कि रूल क्या है, रिस्क को ध्यान में रख करके ही काम करना होगा, लेकिन कुछ मैटर में जहां पर कि रिस्क एनालिसिस अप्रोप्रिएट नहीं है या उस बिजनेस के नेचर के हिसाब से सूट नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप रूल रेगुलेशन बना सकते हैं विदाउट ऑब्जर्विंग रिस्क एनालिसिस ऑफ दैट पार्टिकुलर केस। तो मेन मतलब यह है कि पहला पॉइंट कहता है कि कोई भी कस्टम या कन्वेंशन प्रिवेल कर रहा है उसको देखेंगे आप। दूसरा कह रहा है कि उस बिजनेस में रिस्क कितना है, रिस्क एनालिसिस को ध्यान में रख करके आप उसके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बनाएंगे। तीसरा कहता है कि अंडरटेक रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस। एंड इन द कह रहा है कि जो आप रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं या रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग में आया, सपना में आ गया, ड्रीम में आ गया कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, बस मैंने कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको साइंटिफिक एविडेंस जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक एविडेंस। इसलिए साइंटिफिक कमेटी, फसाई के पास पावर भी है कि साइंटिफिक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। तो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर आप काम करेंगे, इंडिपेंडेंट देख कर काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेंगे। कह रहे हैं कि जब भी आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तब वह रिस्क असेसमेंट साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये चीजें सी कहता है। डी कहता है कि इंश्योर दैट देयर इज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन। और इस बात का भी ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे तो पब्लिक का कंसल्टेशन एकदम मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब पब्लिक से राय मशविरा ही करना चाहिए। इसीलिए भारत में कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है पब्लिक ओपिनियन के लिए फॉर्मेट आता है। आप अपना पब्लिक ओपिनियन दीजिए और उसका एनालिसिस होता है कि क्या पब्लिक सोच रही है, कैसे सोच रही है। तो कह रहा है कि इसमें पब्लिक का क्या व्यू है, इसको भी जानने के लिए आपको कुछ करके, मतलब आफ्टर टेकिंग द पब्लिक कंसल्टेशन यू विल मेक द रूल रेगुलेशन। अब पब्लिक कंसल्टेशन कैसे करेंगे? तो कह रहा है कि 2 मेथड है, या तो डायरेक्टली आप घर घर जाकर के पता कर लीजिए, या जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं जैसे पंचायत है या इस तरह की बॉडी है, उनका क्या विचार है, उनके माध्यम से भी आप जान सकते हैं। लेकिन कब कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है? जब कोई अर्जेंसी है, कोई मैटर अर्जेंट है, मतलब अर्जेंसी रिगार्डिंग द कंसर्निंग फूड, इस मैटर में आपको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। तो मेन है कि कंसल्टेशन लेकर के कुछ काम करेंगे। इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ कोर्स इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ, किस बात को आप ध्यान में रखना होगा रूल रेगुलेशन बनाने के साथ। आपको ऐसे रूल रेगुलेशन बनाना है जिसमें फ्रॉडुलेंट को रोका जा सके, डिसेप्टिव मैनर को रोका जा सके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। इस तरह के मैटर को ध्यान में रखना होगा। या अनसेफ और कंटामिनेटेड और सब स्टैंडर्ड फूड, मतलब ये कहने का मतलब है कि जब रूल रेगुलेशन बनाते समय इस बात का ध्यान में रखना होगा कि जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर है या अनसेफ, कंटामिनेटेड, ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे। इस माइंड को ध्यान में रख करके अब बनाएंगे। अब ये किस पर अप्लाई नहीं होता है? अप्लाई नहीं होता है एनी फार्मर के मैटर में आप डील नहीं कर सकते। फार्मर क्या होगा, कैसे होगा, इसीलिए तीनों बिल आए हुए हैं। तीनों बिल में से कोई भी बिल इस पार्टिकुलर एक्ट को टच नहीं करता है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के रिगार्डिंग कोई भी बिल टच नहीं करता है। अगर किसी को कहीं कुछ मिले, मैंने तो सर्च किया, मैंने तो ऑर्डिनेंस देखा भी, लेकिन इस तरह के कोई ऑर्डिनेंस इसको टच, मतलब कोई भी एक्ट जो है, 3 ऑर्डिनेंस जो नए आए हुए हैं इसमें टच नहीं करता है उसको।
अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि नहीं सर ये वाला ऑर्डिनेंस है, ये वाला रूल इस एक्ट को टच करता है, तो आप बताइएगा। उसे टच करेगा भी नहीं। कह रहा है क्लास 3, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्ट शैल नॉट अप्लाई। किस पर अप्लाई नहीं होगा? फार्मर पे, किसानों को कैसे उत्पादन हुआ, किसान क्या करेगा कैसे नहीं करेगा, उस पर आप रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे। फिशरमैन पर नहीं बनाएंगे, फार्मिंग ऑपरेशंस के रिगार्डिंग नहीं बनाएंगे, क्रॉप्स पे नहीं बनाएंगे, लाइव स्टॉक पे नहीं बनाएंगे। लाइव स्टॉक के अंतर्गत वे जानवर आते हैं, वे एनिमल आते हैं जिनका बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है, जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होते हैं, उस तरह के लाइव स्टॉक होते हैं। हाँ, एक्वाकल्चर क्या है, एक नया नया ट्रेंड है और सबको मालूम है। एक्वाकल्चर में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि समुंदर है, समुंदर के बीच में ही, पानी के बीच में जो फसल उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है, या जैसे मछली उत्पादन का काम किया जाता है, इस तरह का जो भी काम किया जाता है पानी के अंदर, उस तरह की चीजों को हम एक्वाकल्चर कहते हैं। तो उस पर आप रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे। और साथ साथ में एंड सप्लाइड यूज आर प्रोडक्ट, या कोई सप्लाई हो, यूज हो प्रोडक्ट, फार्मिंग प्रोडक्ट्स, फार्मर फर्म, इस तरह का जो ऊपर की जो चीजें हैं उनका कोई अगर सप्लाई हो इस चीजों का या प्रोडक्शन हो, उस तरह के मैटर में भी आप रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे। अब इसको एक बार हम सेक्शन 18 को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे, तो शायद हम लोग बेटर पोजीशन में होंगे। और तुम लोग पढ़ लेना, दैट्स व्हाई दिस इज द पॉइंट इज दैट कम टू द सेक्शन 18। Everyone knows that the 10 marks questions is asked on the basis of the section 18. Question generally asked what principles must be followed by the food authority or central government or state governments or any other agency. मतलब कोई भी पूछ दे कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, चाहे वो बाई सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या बाई स्टेट गवर्नमेंट का या फूड एजेंसी का, किसी का भी हो, तो एक ही सेक्शन है जो प्रिंसिपल को डील करता है, वो है सेक्शन 18 section. There are two leading cases: Association of Trade and Others versus Union of India. In this case, Bombay High Court highlighted the importance of Section 18. In the case of the Messrs. Nestle versus Food Safety and FSI, in this particular case, it was make the difference between 18 class 1 and 18 class 2, and it was said that farmer, that is the class 1, talks about those principles which must be followed at the time of implementation of the law, while later, that is the class 2, talks about those principles which must be followed at the time of making rule regulations and specifying standard of this particular act. After two cases, what is the section 18? Total there are 18. There are three classes. First class talks about those principles must be followed during implementation. Class 2 talks about those principles which must be followed at the time of framing regulation. Class 3 talks about those matters over which this particular act is not applicable. Come to the class 1, what must be considered at time of implementation of the law. First principle is that everything must be done after keeping in mind that protection of human life and health, consumer interest, and fair practices. It means first principles is that protection of human life, health, consumer, as well as fair practices. Second is that carry out risk management. Second says that at time of implementation of the law, you always keep in mind what is the risk in the management of this particular act, in this particular business, what like this. Class C that at the time of implementation of the law, you can impose certain restriction in special circumstances. But class D said that yes, you can do under section C, under class C, but that must be in proportionate restriction rather than disproportionate, rather than much more harsher. It said that whatever measures you are applying time to time for the implementation of this particular act must be reviewed again and again. जैसे मान लीजिए कि हर साल में एक बार आप इसको रिव्यू कर ले, या 2 साल में रिव्यू कर ले, जो भी हो, मतलब you have to review again. Yep said that duty of authority to inform public in case of food risk for health. If any food is dangerous for the health of the public or any person, public, you have to proper way, you have to bound
टू इन्फॉर्म देम इन प्रॉपर वे। इसीलिए आप देखते हैं कि फसाई क्या करता है, कई तरह के एडवर्टाइजमेंट निकालते रहता है, कई तरह का नोटिस नोटिफिकेशन निकालते रहता है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द फसाई टू मेक अवेयर टू द पब्लिक रिगार्डिंग द risk for the health. Class G says that if any goods of batch, lot, or assignment falls falls into the test, it shall be presumed that whole amount of that batch, lot, or consignment इज सब स्टैंडर्ड। मतलब ये कह रहा है कि अगर बैच का थोड़ा सा भी गुड्स या लाट या कंसाइनमेंट टेस्ट में फेल हो जाता है तो मान के चला जाएगा कि उस लाट का या बैच का या कंसाइनमेंट का टोटल जो फूड है वर्स्ट है, मतलब गुड नहीं है। तो आपने देखा होगा कि ए से जी तक के वो वे प्रिंसिपल हैं, दोज प्रिंसिपल्स विच मस्ट बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। क्लास 2 talks about those principles which must be keep in mind at the time of framing the law. First is that you have to keep in mind practices which are going on in this country or in international community. Second point is that you have always determine standard on the basis of risk analysis. And as you know that risk analysis, how to determine the risk analysis, this risk analysis must be decided on the basis of scientific evidence, on the basis, and that must be independent, objective, as well as in transparent manner. Class D says that you have to take the public consultations before framing rule regulations under this act. You have to take public consultation. It means what is the opinion of public, what is the view of public. After taking that, you will frame any law. So what is that? You can consult them either directly or through their representative, for example, panchayat. But she said that you have always keep in mind regarding the interest of the consumer. कोई भी रूल रेगुलेशन आप बनाएंगे, आपको always you have to keep in mind that you are bound to protect the interest of the consumer. As well as last is that your rule and regulation must be to prevent fraudulent practices, deceptive, unfair trade practices, unsafe, contaminated like this. कह रहा है कोई रूल रेगुलेशन इसको रोकने के लिए बनाओगे, ऐसा नहीं कि इसको बढ़ाने के लिए बनाओगे। कई बार क्या होता है कि बड़ी कंपनियों के फेवर में सब क्या करते हैं कि ऐसा रूल रेगुलेशन बना देते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के फेवर में चला जाता है, और वो क्या करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देते हैं, और इसके बाद से बाकी चीजें बाकी मार्केट में खत्म हो जाता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फूड से तो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीएसएनएल और जियो की कहानी यही इसी तरह का है। तो आप कोई भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे तो या एलआईसी को देख लो, एलआईसी का क्या कंडीशन चल रहा है। तो कह रहा है कि फूड के मामले में जब आप ऐसा रूल रेगुलेशन बनाओगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट मतलब रोकने के लिए रादर देन इसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो ये सब चीजें क्लास 3 कहता है किस पर अप्लाई नहीं होगा, फार्मर, फिशर, फार्मिंग, क्राफ्ट, लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर, सप्लाइंग ऑफ दिस थिंग्स इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। सीएजी की रिपोर्ट कहती है these are the 5 lacuna I have already discussed again and again. You can read, there is no need to discuss. Come to the another questions, other topic. Question is that the power, functions and liabilities of food safety officers. It was asked in 2017. What was the question 17? Power, functions and liabilities of the food safety officer under this particular act. And here this is the same except explain with the relevant provisions. Explain with the relevant provisions. देखो अगर ये नहीं भी रहता ना explain with relevant provision तो भी तुम्हें सेक्शन लिखना ही लिखना है। मैं हमेशा इसी बात को लेकर ही चिंता में रहता हूँ। डीयू के बच्चों का बेयर प्रोविजंस पे पकड़ बहुत ही कमजोर रहती है। बेयर एक्ट के मामले में पकड़ बनाया नहीं पाता है, वो फिलॉसफी में जीता है कि हम केसमेट पढ़ लिए बहुत बड़ा विद्वान हो गए, मूर्ख आदमी। केसमेट क्या एक ब्रांच है, बेयर एक्ट क्या है, वो सीड है। मतलब क्या सीड कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, मतलब कि रूट कर सकते हो उसको, क्योंकि कोई भी केस डिसाइड होता है किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द बेयर प्रोविजंस।
अगर बेयर प्रोविजन मालूम ही नहीं, तुम लाख केस पढ़ लो, तुम कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान तुम लोग बेयर को इंटरप्रेट करना सीखो, बिकॉज सपोज दैट टुडे इज a ratio of this particular case on the interpretation of the that provision, tomorrow ratio of the case may be different। जजमेंट तो ओवररूल हो जाते हैं, क्यों रूल ओवररूल हो जाते हैं, जबकि बेरेट के प्रोविजन तो वर्डिंग तो सेम रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब वर्डिंग पर ध्यान दो, इंटरप्रिटेशन पर ध्यान दो। कम टू द क्लास 3। अब इसको डील कैसे करना है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्वेश्चन आ चुका है, और आप लोग देख रहे हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आ चुका है, और आ भी रहा है 17 और 19 में। संभावना है कि 20 में नहीं आएगा, फिर भी पढ़ लेना, जानकारी रखना जरूरी है। How, according to section 3, how to start this point is that according to section 3T, that is the food safety officer का मतलब क्या होता है? Food safety officer means an officer appointed under section 37। फूड सेफ्टी ऑफिसर का मतलब क्या हुआ? वही हुए जो कि सेक्शन 37 में अपॉइंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु अपॉइंट देम, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फसाई? नो, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फसाई। दे आर अपॉइंटेड बाय द कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी। कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी का ये सब कंडीशन है कि उस स्टेट में स्टेट वाइज सबसे हाईएस्ट ऑफिसर अगर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला है तो कौन है? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही है। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इसको अपॉइंट करता है, किसको? फूड सेफ्टी ऑफिसर को। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर आ जाए हु अपॉइंट फूड सेफ्टी ऑफिसर, द आंसर इज दैट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। अब हम पुलिस डिपार्टमेंट वाला कमिश्नर की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये मत लिख देना कमिश्नर अपॉइंट्स फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो गलत हो जाएगा। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट द फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक ना? बाकी चीजें हैं, और स्टेट गवर्नमेंट किसी और व्यक्ति को भी अथराइज कर सकता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सेक्शन 19(1) क्लास 2B कह रहा है कि एक अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट इज अथराइज टू मेक रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर by using power conferred under section 91 class 2B. Central government framed rules, that is the food safety and standard rule 2011. This para number 2.1.3 of food safety standard rules deals qualification of food safety which are the following। हमारे कहने का मतलब यह है कि कमिश्नर फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्वालिफिकेशन करेगा वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अभी मैं कह रहा हूं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा क्वालिफिकेशन फिक्स किया है? क्या इंटर पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, या बीटेक लॉ क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो पूरे एक्ट को पढ़ जाओगे तुम्हें क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें रूल को पढ़ना पड़ेगा। ये रूल है, क्योंकि ये पावर तो दे दिया कि 22 इस तरह का। इस पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल 2011। अब इस रूल को जब पढ़ोगे तब तुम्हें क्वालिफिकेशन पता चलेगा। क्या क्वालिफिकेशन है भाई? ये पैरा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल बी होल टाइम ऑफिसर, ए परमानेंट जॉब है। ऑन द डेट ऑन विच ही इज सो अपॉइंटेड possesses द फॉलोइंग। लग रहा है कि सरकार का ध्यान इस पर गया नहीं है, तभी ये होल टाइम ऑफिसर। जिस दिन सरकार का ध्यान चला जाएगा वो भी आ जाएंगे, पार्ट टाइम में आ जाएंगे खर्च से। ये इनके डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री है दे मस्ट हैव डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटेरिनरी साइंस। वेटेरिनरी साइंस का मतलब होता है जो डॉक्टर, जो पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको वेटेरिनरी साइंस बोला जाता है। क्योंकि आज ही मैं सीखा हूँ, बहुत सर्च करते हुए, सर्च का मतलब सीखा हूँ, माहौल बना रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। वेटेरिनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। कह रहा है कि तुम्हारी अगर इसमें डिग्री है, डिग्री मतलब कि ग्रेजुएशन वाली डिग्री है, चाहे फूड हो, डेयरी हो, इस सब चीजों में, या मास्टर डिग्री हो, किसमें मास्टर डिग्री हो? केमिस्ट्री में हो, और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइक दिस, ये तुम्हारा डिग्री है, ये तुम्हारा क्वालिफिकेशन हो गया। मतलब कि पर्सन हु हैज
degree in food technology, dairy, bio, oil, agriculture, veterinary, bio, microbiology. He is qualified to be like this. After the qualification, what is the responsibility of the food safety officer? Responsibility क्या है? Section 29 deals about the responsibility. It simply says that food safety officer shall enforce this particular act within their area of the provisions of this act. इसको पढ़ लेना, कुछ नहीं है. What is the power of the food safety officers? He may take the sample. He may take the sample. He may seize any article of food. He may keep it in custody, safe custody. ये सब तुम पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, तो पढ़ने का बच्चों का काम है. लाइबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर की लाइबिलिटी क्या है? सेक्शन 10 इसमें डील कर रहा है, इसको भी देख लेना. Procedure for launching prosecutions. Food safety officer shall be responsible for inspection of food business, drawing sample and sending them like this. तो हमारे कहने का मतलब है फूड सेफ्टी ऑफिसर की जब बात आती है तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है. तो डिफाइन किस में किया गया? सेक्शन 3T में डिफाइन किया गया. तो सेक्शन 3 कहता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का मतलब हु आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37. तो T से कहाँ आ गए? 37 में आ गए. 37 कहता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करता है. और वही सेक्शन कहता है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करे. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 91 के क्लास 2 का सब क्लास बी में जाना पड़ेगा. जब 91 क्लास 2 सब क्लास बी में जब जाओगे तब वहां पर वो बताएगा कि इस पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है. अब रूल के पास जाओगे, कौन सा रूल बनाया है? तो रूल बनाया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल 2011. अब उस रूल को खोल दोगे, अब उस रूल में कौन सा पैराग्राफ, क्योंकि रूल तो 50 पेज का है. अब उस रूल में जाओगे तो पैरा नंबर 2.1.3 पे जाओगे. तो पैरा नंबर 2.1.3 पे जब जाओगे तब वहां पर वो बताएगा कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है. तो वही क्वालिफिकेशन है कि नॉर्मली कह सकते हो कि साइंस स्टूडेंट का जो है, साइंस का स्टूडेंट है, उसको प्रायोरिटी दी गई है, वही उसका क्वालिफिकेशन है. बाकी इनकी पावर क्या है, लाइबिलिटी क्या है, तो ये हमें बस ध्यान में रखना है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेन पावर क्या है? वो सैंपलिंग ले सकता है. किसी भी फूड को टेस्ट करने के लिए सैंपलिंग ले सकता है. तो जब सैंपलिंग ले सकता है तो बस इसी लाइन वर्ड को वो बना करके अपनी एक कहानी गढ़ लेना और उसी हिसाब से लिख देना. जब वो सैंपलिंग लेगा तो सैंपलिंग लेगा कैसे? किसी न किसी गुड्स को सीज तो करेगा ही, और जब किसी गुड्स को सीज करेगा तो सेफ कस्टडी में रखेगा. नहीं तो क्या होगा? कंपनी वाला आएगा, छीन करके लेकर चला जाएगा. ठीक ना? तो सेफ कस्टडी में रखना पड़ेगा. और कस्टडी में रखने से तो काम होगा नहीं. उसको रखने के बाद फूड एनालिसिस्ट के पास भेजोगे, तब वो लेबोरेटरी में जाएगा, तब वहां से रिपोर्ट आएगी. एक कहानी अपने हिसाब से तुम लिख लोगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर दिया. लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी यही है कि कर रहा है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते समय अगर वेक्सेसली किसी को परेशान करता है, जानबूझकर परेशान करता है, या विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड को सीज कर लेता है, या आर्टिकल ऑफ फूड एडल्ट्रेशन ऐसा करता है, उसके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई हो सकती है. ही शैल बी लायबल फॉर द पेनाल्टी विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज. अगर इस तरह की गड़बड़ी करता है तो 1 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लग सकता है. इसीलिए फूड सेफ्टी ऑफिसर वाले क्या करते हैं कि अपने घर में मिठाई उठाई खरीदते ही नहीं है. इतना मार्केट में धाक जमाए रहते हैं कि उनको मना करना पड़ता है कि भाई दीपावली आगे बस करो, अब मिठाई नहीं चाहिए. क्योंकि दुकानदार वाले को मालूम है अगर मिठाई नहीं पहुंचाएंगे तो अगले दिन में पहुंच जाएगा और कहेगा कि तुम्हारा मिठाई जो 2 दिन पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, स्टैंडर्ड है ही नहीं, चलो हम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे. अब टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा? तुम्हारे मार्केट का रेपुटेशन खत्म. अगर एक बार टेस्टिंग के लिए सैंपल ले लिया, न्यूज में आ गया कि हाँ यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है कि फूड कैसा है कैसा नहीं, उसका रिजल्ट क्या होगा, बस तुम्हारा मार्केट खत्म करने के लिए उतना ही काफी है. तो ये सबके पास बहुत ही पावरफुल है. नॉर्मली पैसा सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं है,
बाकी चीजें तो समझ गए होगे। जब तुम्हारे एक मात्र कहने से कि सैंपलिंग हम ले रहे हैं, मार्केट खत्म हो सकता है किसी भी बिजनेस का, तो तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल इस मार्केट में कोई है नहीं। अब नेक्स्ट केस से क्लास से हम ये पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, ये सब तुम्हें खुद पढ़ना होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास से हम अपना केस स्टार्ट करेंगे। जब केस स्टार्ट करेंगे तो हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास से होगा डिफाइन फूड व्हाट इज लाइक दिस 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 दिस, ठीक ना। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, मोहम्मद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन।